On this momentous occasion, it is our proud privilege and fortune to welcome our Honorable Chief Guest of the day, Madam Julie Kumari, Senior Deputy Collector Muzaffarpur, our most respected pioneer, our patron, our guide, Shri Anil Kumar Sir, PRO DAV Public School, Bihar Zone C, all the revered principals of different DAV Public Schools of Bihar Zone C, Ram Kumar Sir, Principal DAV Kaki, B.S. Pandey Sir, Principal DAV Khabda, respected media representatives, parents present over here for this fascinating event which sheds a light on the importance of the evolution of women in the society. We are immensely entranced and honored by the decorous and benign presence of our Honorable Chief Guest, Madam Julie Kumari, on this very special day, which has become significant itself since she arrived at the DAV Maligarh premises. Once again, a very warm welcome to each one of you to the much awaited event, Muskaan, Girls with Dreams Become Women with Vision. We have gathered here today in the spirit of celebrating and fostering the cause of women's empowerment, which remains as relevant and as vital as ever. Today's event will feature a range of activities including inspirational talks, cultural performances, and the showcasing of our students' accomplishments. We hope that the program today will inspire everyone, especially our girls, to dream big, set ambitious goals, and work tirelessly towards fulfilling their vision. Once again, I extend my heartfelt welcome to all of you, and I do hope that Muskaan today brings a smile not just to our faces, but to our hearts, our minds, our souls, as we collectively reaffirm our commitment to women's empowerment and the dreams and vision of our girls. Thank you so much for listening to me, for giving me the precious time, and let the celebration begin. Thank you so much. शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः I, Adiba Hassan, school leader, feel profusely elated to extend my warm welcome to each and every one of you to this special event, Muskaan, a program on women empowerment. Muskaan translates to smile, and our aim today is to bring a smile to the faces of every woman present here, and to acknowledge the incredible contributions. It's a day of inspiration, motivation, and the much needed encouragement. Muskaan signifies the smile of empowerment that we aim to bring. Our goal is to encourage gender equality, break stereotypes, and create a society where every woman has the opportunity to shine. So now, without any further ado, let us invite the students for the welcome song. स्वागतम
तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई जाके सर मोर मुकुट मेरा तक सोई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। Namaste to everyone. A very warm, beautiful and sounding good morning to you all. Honorable Chief Guest of the day, Madam Julie Kumari, Senior Deputy Collector, Muzaffarpur. Very charming, kind, lovable, energetic, enthusiastic and exemplary leader who wishes to contribute her ideas towards the benefit of the society. I express my heartfelt gratitude with the thanks that she has accepted the invitation with a very short notice and giving us today her prime time. Thank you so much, ma'am, for your valuable time and desire to be part of this eventful event, Muskan. As Muskan, we design is for the women empowerment. I felt proud enough that I have been surrounded with all great ladies in the galaxy. And Madam is one of them, the leading example. Though she is very young, very dynamic, and cherished to do a lot of work for the development of the people and the students. At the same time, I take it as a great honor to welcome our none other than very lovable, kind, considerable, supportive, and a dynamic leader in this, particularly in this zone, our dear Assistant Regional Officer Sir Sri Anil Kumar, Principal cum ARO Bihar Zone C, Bakri, Devi Public School, Bakri, Muzaffarpur. Sir, thank you so much. I am really grateful and thank you so much. Your inspiration, your support and your kind presence always enlighten me to carry on and to do something little more for the children. Thank you so much, sir, for your august presence in this program. And whatever I need the support from my fellow principal colleagues, as my brothers, the sister concerned school, they are always standing behind me. I would like to take their name. Principal, Devi Public School, Dumra Sitamari, Sir Kumar Singh. Principal, Devi Public School, Kanti Muzaffarpur, Sir Sri Ram Kumar sir, thank you so much sir. And Principal Devi Khabra, B.S. Pate sir, thank you so much for your timely presence and that always supports me that yes, we can do the work and I am not alone, we are together. Thank you for developing such togetherness and the spirit of strengthening each other at the time of need. And it's obviously I say, is not completed and not complete without the presence and support of my dear parents. It's you only who always standing like a rock, like a strong pillar for the development. Any is not possible that I could make it done. So dear parents, I equally offer a red carpet bouquet of welcome to you all of this campus of Devi Malika. That's strengthening me always. Yes, my parents are there to start and to come forward for any work. That really motivates us again to do something more and more and more. Hunger and thirst पूरा हुई नहीं ना? उम्मीद करती हूँ अच्छा लग रहा है आप लोगों को? Loud, yes, it should be.
Very nice. It should be the list. And I could find, though we are a very small place, and I must not forget the contribution, the dedication of my teachers. Those are working unconditionally throughout the day. Whether it is morning at 6 o'clock, they have to report or depart by evening 5 o'clock. They never rest post in work. Yes, that is the work. It's supposed to be done and they used to do. Thank you all my dear teachers. That is you only who made me always strong enough to face any kind of audacity what comes on my way. And my dear loving children, you are there, you are the chiefing bird of this campus. Without you, the campus has no meaning. There is no signing, there is no glory, there is no achievement. So I equally welcome you to this occasion of Muskan. And thanks to all my non-teaching staff and my decorative team, Krishna and all his children. Those are really putting their all ideas, the concept to make it very vibrant and meaningful, the Muskan. Muskan comprises for the development of women. It is simply aims at to creating an awareness, giving them the motivation to grow. Knowing who they are, what they are, where they are, apart from all our tradition and cultural disguises and discriminations. It is only the women who helps the society to grow. I would like to quote here what Jawaharlal Nehru said once, to awaken the people, it is the women who must be awakened. Once siege on the move, the family moves, the village moves, the nation moves accordingly. These lines are indeed true, as a country cannot be said developed until or unless the women in that country are given equal rights as men. I must like to take the name from our history. All are well known to her, Rani Lakshmi Bai, who set a burning example, being a woman. What is her contribution? Similarly, take the modern example, one example before us. Our former Prime Minister, Mrs. Indira Gandhi, space woman, Kalpana Chawla, and a leading pious lady, woman, Mother Teresa, who are in front of us as a burning example. Yes, we can do. We are the women of this society who are really creating a benchmark for our youngsters. They must have to be imbibed, they must have to learn, they must have to educate themselves accordingly. Yes, I can do, I can do. And I wish to request all my parents to motivate their girl children को बरकरार रहने के लिए हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए। एक छोटी सी गुजारिश है आपसे, प्रोग्राम कंप्लीट होने तक आप कृपया अनमय रहें। धन्यवाद।
लंबी डगर है पर हिम्मत है संग, पाँव पे छाले हैं सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग। बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। क्या कर रहे हो बेटा? पढ़ाई पढ़ो पढ़ो, तुम तो लड़के हो ना, तुम्हें तो बहुत आगे जाना है। और तुम क्या कर रहे हो? लड़कियों के पढ़ाई करके क्या मिलेगा? जाओ घर की काम में हाथ बटाओ। रीति की जंजीरें खा गई जंग, न्याय के मंदिर भी हो गए भंग, जमाना चले ना चले मेरे संग, बोलूंगी हल्ला आवाज दबंग। बेखौफ आजाद है कहना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है कहना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। छोटे जिस्म पर मरहम उमंग, लाश नहीं हूँ मन जिंदा पतंग, दिल में उम्मीदें और खुशियों के रंग, हर आंसू बनेगा एक नई तरंग। हाँ बेखौफ आजाद है बहना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है बहना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। दीवारें ऊंची है गलियां है तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग, पाँव पे छाले हैं सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग। बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना। जो गजल को मुकम्मल कर दे, वो अक्षर जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो अक्षर जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो नहीं तो जिंदगी अधूरी है। वो अक्षर जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो नहीं तो जिंदगी अधूरी है। ये नहीं कहूँगी कि सांस सांस होती है, ये नहीं कहूँगी कि सांस सांस होती है, बेटियां तो सिर्फ एक एहसास होती है, सिर्फ एक एहसास होती है। With these few words, I would like to call on stage our next performer, खुशियों के पल। एक जोरदार वाली क्लैपिंग इन सारे के सारे बच्चों के लिए करना था। ये कैसे बात कर रहे हो आप? क्या बात कर रहे हैं? लड़का चाहिए होगा आपको? नहीं, लड़का नहीं, लड़की ही चाहिए थी। तो फिर क्यों करा रहे हो अबॉर्शन? क्योंकि रेप हो जाएगा इसका। मुझे आपकी आवाज बहुत पसंद है। माँ, क्या आप मेरे दिल की धड़कन सुन सकती हो? आपके दिल की धड़कन की आवाज मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। माँ, अब मेरे हाथ बन चुके हैं। मैं तुम्हें छूना चाहती हूँ। माँ, तुम्हें पता है मैं एक लड़की हूँ।
होता है? माँ, अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई, और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। किसे पूछूं है ऐसा क्यों बेजुबां सा ये जहां है। खुशी के पल कहाँ ढूंढूं बेनिशां सा वक्त भी यहाँ है। जाने कितने लबों पे गिले हैं, जिंदगी से कई फासले हैं। बस जीते हैं सपने की आंखों में, लकीरें जब छूटे इन हाथों से यूं बेवजह। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। ईश्वर ने धरती पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक औरत को दी है, सृष्टि का क्रम चलाने की जिम्मेदारी। जब बेटी उठ खड़ी होती है तभी विजय बड़ी होती है। आज से अब से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी। जान को चाहे चलनी कर दो, मान को ना छूने दूंगी। आज से अब से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी। जान को चाहे चलनी कर दो, मान को ना छूने दूंगी। छू के देखो दिल मेरा, तुम्हें दिल में अपने भर लूंगी। पर छेड़ के देखो तुम मुझको, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। तुमको नहीं छोड़ूंगी।
अपने हौसले से नारी भर रही है ऊंची उड़ान, ना कोई शिकायत ना कोई थकान। महिलाओं को दे शिक्षा का उजियारा, महिलाओं को दे शिक्षा का उजियारा, पढ़ लिख कर करे रोशन जग सारा। पुरुष और महिला एक समान, जन जन का हो अब यही आह्वान। धन्यवाद। तू गुड़िया से खेलने के लिए ना जन्मी बेटिया, जा घर में जाकर माँ से घर के काम काज सीख, बड़ी होकर तुझे भी यही करना है। उठाया बैडमिंटन और जल्दी खेल ले, घर के काम काज कौन सीखेगा? जा झाड़ू उठा और जाकर के घर में झाड़ू लगा। अभी नहीं सीखेगी तो कब सीखेगी? पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, ये क्या जिद लगा के रखा है बिटिया? तेरा भाई पढ़ रहा है ना, वो हमारे नाम रोशन कर देगा। तुझे पढ़ने की कोई जरूरत ना। ये पकड़ चोकला बेलना और जाके रोटियां बनाना सीख, यही काम आएगा तेरी जिंदगी में। एक तो तेरे साले रंग से हम ऐसे ही परेशान हैं, ना एक अच्छा घर मिल रहा, ना एक अच्छा लड़का मिल रहा तेरी शादी के लिए। ऊपर से तेरी जिद, बाहर जाके कमाना है तुझे। तू खुद सोच बिटिया, तू 10 लोगों के बीच में ऐसे काम करेगी, तुझे सुना देगा क्या? बस मैंने कह दिया सो कह दिया, कहीं नहीं जाना है काम करने, कुछ नहीं बनना है तुझे, टीचर बनेगी, कोई जरूरत नहीं है। तेरे पापा ने तेरी शादी तय कर दी है, ये पकड़ शादी का तो जोड़ा, जाके तैयार हो जा। अपने मन को अभी से तैयार कर ले कि अब तुझे ससुराल ही जाना है। तू क्यों शादी के मंडप पे बैठी है? तेरा दूल्हा नहीं आएगा, तेरे बाप ने दहेज के सारे रकम नहीं चुकाए। हम भी तेरा ये सुंदर शकल लेके क्या करेंगे जब तेरे घर से पैसे ही नहीं आए? चल जा, सड़ती रहे अपने घर में, तेरी कोई जरूरत नहीं किसी को। मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, मैं जोर से हंस नहीं सकती, मैं किसी से बातें नहीं कर सकती, मैं बाहर नहीं जा सकती, मैं शांति से घर में रह नहीं सकती, मैं अपना मनपसंद काम नहीं कर सकती, मैं बाहर जाके कमा नहीं सकती। ऐसा क्यों? आखिर क्यों? क्या कसूर है मेरा? हे भगवान, क्या मुझे इसलिए धरती पे भेजा था? ऐसी बात थी, तू तो जानता था कि हमारी कोई कद्र नहीं धरती पर, फिर हमें पहले ही क्यों नहीं मिटा दिया? क्या मेरा ये अपराध है कि मैं एक लड़की हूँ? क्या लड़कियों को कुछ करने का अधिकार नहीं? क्या उन्हें बस घर के कामकाज के लिए पैदा किया है? आखिर क्यों हमें बनाया जब हमें जीने की आज़ादी नहीं? आखिर क्यों क्यों ईश्वर क्यों? चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। सदियों से आ रही इस कुप्रथा के खिलाफ आज तक किसी ने आवाज नहीं उठाई। आज इसलिए तुझे भी ये सब सहना पड़ रहा है। अगर तेरी माँ या तेरी दादी ने इसके खिलाफ आवाज उठाई होती तो आज तू उन्मुक्त गगन में आजाद पंछी बन के घूम रही होती। बहुत हुआ तुम लोगों का नाटक। ये औरतें सिर्फ रोना ही जानती हैं। अच्छा हुआ इन्हें हमें बराबरी का दर्जा नहीं मिला, वरना रो रो के हमारा सर खपा देती। चल उठ, जा घर के काम काज कर और हमारे लिए खाना पीना बना। यही तेरा धर्म है, यही तेरा कर्म है, हर वक्त रोना धोना। चल निकल जा। कुमारी, स्वाहा शक्तिशाली, देशमुक्त बलशाली, ब्रह्मवादी हमारी।
गर जुनून हो सर पे तेरे और अंतर में हो विश्वास, फिर ठोकर और ठुकराने का होगा कहां तुम्हें एहसास। मकसद में सच्चाई है तो सीना ठोक के यही कहो, मकसद में सच्चाई है तो सीना ठोक के यही कहो। झुकना होगा दुनिया तुमको, विश्वास पे अपने खड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। Good morning to all respected teachers and my dear friends. This is Sandra Sushant from Standard 2B, and this is Ananya Sushant from UABC. Whether it's the sky or the world field, whether it's space or the kitchen, whether it's sport or the cinema, daughters are showing their abilities in every field. Our president and our school principal is also a proud daughter. Yes, my dear, you are right. Puppets are beautiful creations of God. We are the victims of our family. But some people don't like us. They don't give us proper education and upbringing. We both request from the society, let us grow and educate. We promise we will make our country proud. Beti Bachao, Beti Bachao. Thank you, have a nice day. जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी, कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। मर मर के जीने से बेहतर है कुछ करके जीना, कुछ करके जीना, कुछ करके जीना। पिघला दे जंजीरें, बना उनकी शमशीरें, कर हर मैदान फतेह ओ बंदिया, कर हर मैदान फतेह। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। इन गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के वक्त का गिरेबा पकड़ के, पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के, आसमां की हद से गुजर के, हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा।
Together, let's sing words you have thinking on earth. I am Margaret and friends. You come up and go and keep sharing. All time learning and learning, हंसी ठिठोली कर सबका मन बहलाती हैं बेटियां, पायल की रुंझुन से गुनगुनाती हैं बेटियां, पानी से निर्मल स्वच्छ नज़र आती हैं बेटियां। क्यों देखते हैं दोयम निगाहों से इन्हें ज़माने वाले, किसी भी मकान को घर बनाती हैं बेटियां। बेटियां हर घर का सम्मान गर्व होती हैं। क्या नहीं सुनाई देती तुम्हें उस अजन्मी बेटी की आवाज़, जो करहा रही तुम्हारे ही अंदर बार बार? मत छीनो उसके जीने का अधिकार, आने दो उसको भी जग में लेने दो आकार। अरे सुखदेव, तुम्हारे घर में लक्ष्मी पैदा हुई है। लक्ष्मी। क्या क्या कहा डॉक्टर साहब? लड़की पैदा हुई? मैंने तो सोचा था डॉक्टर साहब कि लड़का पैदा होगा और मेरे वंश को आगे बढ़ाएगा। अब मैं क्या करूं? लाओ डॉक्टर साहब, ये लड़की मुझे दे दो। इधर आसपास कोई है तो नहीं? चलो इस लड़की को यहीं फेंक देते। अंगना में उतरे जैसे धूप की चिड़िया, अखियों में ऐसे खेले रूप तेरा गुड़िया, साथी न संगी कोई सखी न सहेली, किन संग खेलेगी तू लाडो अकेली? हाँ बंद है कि बढ़िया खिड़की पे साकर, किसके लिए दुनिया में आएगी तू पागल, आएगी तू पागल। लड़के की तरह लड़की भी नाम रोशन करती है, लड़के की तरह लड़की भी नाम रोशन करती है। कुछ भी नहीं अंतर, फिर क्यों जन्म से पहले मारी जाती है? बहू, मुझे लड़का ही चाहिए। माँ 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 माँ, अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई, और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ, मुझे जी लेने दो, अपनी कसम मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। माँ, मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ, पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करे, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी, तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना। मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखे।
कब्र ना बनाए, खुशी खुशी बिटिया। इस कुप्रथा का भयावह दृश्य दिखाते हैं। आइए आपको इन अद्भुत लोगों से मिलवाते हैं। हेलो, हाँ, कैसी हो बेटी? ध्यान रखो अपने नन्हे मेहमान का। जाके पानी लेके आ। हाँ हाँ, तेरी भाभी भी ठीक है। मैंने तो सोच रखा है मेरे घर पोता ही आएगा। मैं आज जाके अस्पताल में जांच करवाऊंगी। मुझे पता है मेरे घर कुल का दीपक मेरा पोता ही आएगा। ठीक है, रखती हूँ। ठीक। चुप कर, पैसे क्या तेरे मायके से आते हैं जो बार बार डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर के पास जाना है। इस वक्त में सबको ऐसा ही होता है। कैसी हो? बेटा, ये क्या फिजूल के खर्च कर रहे हो? मेरी सास तो मुझे ऐसा वैसा खाने भी नहीं देती थी और दिन भर काम करवाती। चुप कर, जा जाके आदि कर। ये तो बस तेरे बहाने हैं काम से बचने के लिए। पता है आजकल की बहुएं ना बहुत काम छोड़ हो गई है। एक काम बोलो ना तो ये होता है वो होता है करने लग जाती है। सही कह रही है। मैं तो जानता हूँ क्या कर रही हूँ। अगर बेटा हुआ तब कर लूँगी। बेटी हुई तो माजी पर बेटा और बेटी ने क्या फर्क रखा है? दोनों ही हमारे खुद का नाम रोशन करेंगे। चुप कर, मैंने इसीलिए कहा था बेटी को इतना नहीं पढ़ाना चाहिए। ससुराल जाके जवान लगाई मैंने बेटा तो बस बेटा। पर माजी चुप कर, तेरा मायके नहीं, जो चीज़ है वो करेगी। ये मेरा घर है, तेरा नहीं। बहुओं को इतना सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। हाँ, सही बोल रही हो। चिड़िया होती है लड़कियाँ मगर पंख नहीं होते। चिड़िया होती है लड़कियाँ मगर पंख नहीं होते। मायके भी होते हैं, ससुराल भी होते हैं, मगर घर नहीं होते, मगर घर नहीं होते। मायका कहता है ये लड़कियाँ तो पढ़ाई है, ससुराल कहता है ये पढ़ाई घर से आई है। ए खुदा, ए मेरे खुदा, अब तू ही बता आखिर तूने ये बेटियाँ किस घर के लिए बनाई है, किस घर के लिए बनाई है? Are you sure? Do you want to abort? No, I don't want to abort my child. But if I don't obey my mother-in-law, she will kick me out of her house. Do you know it's illegal? जी डॉक्टर, मैं जानती हूँ कि ये इलीगल है, लेकिन मेरी बेटी अगर ऐसे समाज में जन्म लेगी तो इसे भी मेरी तरह घुट के जीना होगा। But it is very risky. आपकी जान भी जा सकती है। जाने दीजिए ना डॉक्टर, ऐसे समाज में रह के भी क्या फायदा जहाँ बेटी किसी को नहीं चाहिए लेकिन सुंदर बहू हर किसी को चाहिए। प्लीज काम डाउन, आप इंतजार करिए। बच्चा काफी स्वस्थ है, लगता है आपकी सास काफी ख्याल रखती है। ओके, आप वेट करिए, मैं आती हूँ। मैं भी दुनिया में आना चाहती हूँ, चिड़ियों जैसे चहचहाना चाहती हूँ, अलग अलग रंगों में खेलना चाहती हूँ, पापा की लाडली बनकर बड़ी होना चाहती हूँ, माँ की गुड़िया रानी बनकर बड़ी होना चाहती हूँ। पर आज मेरी माँ मुझे मिटाने आई है क्योंकि
कि मेरी दादी नहीं चाहती कि बेटी हो। मुझे बचा लो ना माँ, उठो ना माँ, मुझे बचा लो ना माँ। अगर आप ही मेरी रक्षा नहीं करोगी तो कौन करेगा? उठो ना माँ, मुझे बचा लो ना माँ। कली को खेलने से पहले क्यों बुझा देते हैं? एक नए दिन को क्यों अंधेरे में धकेल देते हैं? यार उसने कभी एक नई दुनिया देखी भी नहीं, फिर क्यों उसे हम कोख में ही मार देते हैं? किस बात से बोल सकती है बेटियाँ? आज पूरे जग में नाम रोशन कर रही है बेटियाँ, खुशियों से तेरा दामन भरती है बेटियाँ, तो फिर क्यों कोख में पल रहे घूमते हैं दूरियाँ? मत मारो बेटियों को, मत करो ऐसा पाप, सीखना तुम इस कविता से, भूल हत्याएं कभी साजा। आज हम भी वही सब कुछ दोहराएंगे तो समाज में कभी कुछ बदलेगा ही नहीं, हम सदा पिछड़े ही रहेंगे। और आप ही बताइए, आज आप और मैं बेटियों को मारेंगे तो कल अपने बेटों के लिए बहुएं कहाँ से लाएंगे? अभी सुनिए, आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपके घर में तो बेटा हुआ है बेटी, आपके ऊपर दहेज जैसा कोई बोझ नहीं, आप तो रहने ही दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। रुकिए लाडो, अरे ओ लाडो, जरा इधर तो आना। छन छन करती नन्ही परी जब दौड़ी दौड़ी आती है, खिल जाता है परिवार जब बेटियां मुस्काती है। छन छन करती नन्ही परी जब दौड़ी दौड़ी आती है, खिल जाता है परिवार जब बेटियां मुस्काती। चंदा से प्यारी गुड़िया लक्ष्मी ये घर आंगन की, जगमग करती मेरी दुनिया रौनक ये हर सावन की। ओ बिटिया रानी मेरी, तू ही मेरा सम्मान है। ओ बिटिया रानी मेरी, यहाँ ओ बिटिया। What's up? चले जैसे हवाएं सनन सनन, उड़े जैसे परिंदे गगन गगन, जाए तितलियां जैसे चमन चमन, यूं घूमूं मैं भी मगन मगन। हे 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 वो, हे हे वो आहा। चले जैसे हवाएं सनन सनन, उड़े जैसे परिंदे गगन गगन, जाए भंवरे जैसे चमन चमन, यूं घूमूं मैं भी मगन मगन। चले जैसे हवाएं सनन सनन, उड़े जैसे परिंदे गगन गगन। देखो इस लड़की को, कुछ शर्म ही नहीं है। देर रात तक लड़कों के साथ घूमती रहती है ये। ऐसी लड़की को तो यहाँ रहने ही नहीं देना चाहिए। संस्कार जैसी चीज इस लड़की में है ही नहीं। जीना 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 रे उड़ा गुलाल, माए तेरी चूनरिया लहराए। जीना 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 रे उड़ा गुलाल, माए तेरी चूनरिया लहराए। राम ने
हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। मैंने कहा फूलों से, मैंने कहा फूलों से हंसो तो वो खिलखिला के हंस दिए। और ये कहा जीवन है भाई मेरे भाई हंसने के लिए। ओ मैंने कहा फूलों से हंसो तो वो खिलखिला के हंस दिए। और ये कहा जीवन है भाई मेरे भाई हंसने के लिए, हंसने के लिए। मैंने कहा फूलों से हंसो तो वो खिलखिला कर हंस दिए। ये शाम तो यूं हंसे जैसे हंसे दुल्हन। ये शाम तो यूं हंसे जैसे हंसे दुल्हन। ये शाम तो नीले नीले सांवले अंबर में रंग जो गुलाबी लगे भरने। मैंने कहा तो मैंने कहा रंगों से छलको तो वो जग ये सारा रंग गए। और ये कहा जीवन है भाई मेरे भाई रंगने के लिए, रंगने के लिए। मैंने कहा फूलों से हंसो तो वो खिलखिला कर हंस दिए। सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आपने इतना वेरी गुड टाइम यहाँ शेयर किया, ये बच्चों का उत्साहवर्धन किया और अपना कीमती वक्त में से कुछ समय निकालकर हम सबों का उत्साहवर्धन आप कर रहे हैं। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। 2-3 पॉइंट पे चर्चा आपसे करना चाहूँगा संक्षेप में, क्योंकि ज़्यादा समय बच्चों को देना है। पहली बात कि जिस देश में हम रह रहे हैं वह देश परंपराओं का देश रहा है और हमारी परंपरा रही है कि नारी का हम पूजन करते हैं। और यहाँ तक कि कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा की जाती है, जहाँ नारियों का सम्मान होता है, वहीं पर देवता निवास करते हैं। कालांतर में ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में थोड़ा सा चेंजेस आया। हम लोग की सोच कहीं कहीं थोड़ी सी बदल गई थी और बेटियों को, महिलाओं को स्वयं दर्जे का नागरिक कुछ हद तक माना जाने लगा। परेशानियां भी रही कि जैसे ही बेटी पैदा होती है हम चिंतित हो जाते हैं कि कैसे शादी करेंगे, कहाँ से इतना पैसा आएगा। और इवन कि बचपन में भी जब आप बेटियों को स्कूल के लिए छोड़ते हैं, जब तक वो घर नहीं लौटती आप चिंतित रहते हैं। आप सब वक्त का ये दुख, ये दर्द हम शिक्षक हैं, हम खुद ही समझते हैं और इसलिए बच्चियों का की देखभाल की जिम्मेवारी हम लोग उठाते हैं। मुझे खुशी है कि परिवर्तन आ रहा है और हमारा डीएवी ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए कृत संकल्प है
प्रिय अभिभावकगण, आज का यह कार्यक्रम सिर्फ कार्यक्रम नहीं है, मनोरंजन नहीं है। आप यकीन करें, कितने सारे पेरेंट्स, इतने सारे बच्चे, जहाँ 5000 बच्चे बच्चियां पढ़ रहे हों, इतने शिक्षक शिक्षिकाएं और इतने वर्किंग पेरेंट्स जहाँ पे हो, इन सब के बीच में इन चीजों का बीजारोपण समाज में एक नया परिवर्तन आ रहा है। इस अनहद और अनंत उमंग मुस्कान के लिए आभार है डीएवी। दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल के मेरे सभी प्यारे छात्र छात्राओं, यहाँ उपस्थित वेरिडिक्टेड सीरीज में है डीएवी काटी खबड़ा और डीएवी सीतामढ़ी के प्रिंसिपल साहब, सभी प्रिंसिपल साहब, एक बहुत ही खूबसूरत लेडी जो भी मेरे बगल में खड़ी हैं, वेरी डायनेमिक, वेरी मैग्नेटिक, वेरी ब्यूटीफुल लेडी ऑफ योर स्कूल, योर ऑनरेबल प्रिंसिपल साहिबा, और यहाँ उपस्थित सभी अभिभावक और मुस्कान बिखेरती मेरी परियां, मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट्स, मीडिया बंधु, यहाँ टीचिंग स्टाफ के रूप में नियुक्त जितने भी हमारे टीचर, शिक्षक, अध्यापक हैं और नॉन टीचिंग स्टाफ के रूप में जितने भी हमारे कर्मी हैं, मैं आप सबका मुझे यहाँ निमंत्रण देने के लिए धन्यवाद करती हूँ। शिक्षा की धरोहर सर्वस्व परंपरा को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए मैं डीएवी का आभार करती हूँ। मैं यहाँ विमेन एम्पावरमेंट के एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक पे बोलने के लिए प्रस्तुत हुई हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रशासन, शिक्षा, खेल, उद्योग, वित्त, विज्ञान, अंतरिक्ष, सभी विषयों पर समान पकड़ करने वाली मेरे भारत देश की नारियां, आप सभी का मैं आभार करती हूँ। बेटियां ईश्वर की सबसे खूबसूरत देन है। अब तक जितने भी विभिन्न प्रकार के इवेंट्स मेरे सामने आए, कुछ इवेंट्स ने मुझे भावनात्मक कर दिया, कुछ इवेंट्स ने मुझे मेरे स्कूल की याद दिला दी, और आप सभी के ये हंसते हुए चेहरों को देखकर मैं उन सारी तमाम भावनाओं को भी मैं भूल गई। इतनी प्यारी फूलों की कलियों की मुस्कान से जीवन का, इवन प्रशासन के द्वारा जो प्रतिदिन हम लोग काम करते हैं, उनमें हम लोग सच में भूल जाते हैं कि शिक्षा ने हमें कहां से कहां तक पहुंचा दिया है। और आज एक साथ आप सबने मुझे वो याद दिला दिया। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं परियों के देश में आ गई हूँ। मैं आह्लादित हूँ, अविस्मरणीय एवं अद्भुत यादों के साथ मैं यहाँ से जाना चाहूंगी, लेकिन मैं उससे पहले आप सभी को अपने जीवन के कुछ अनुभव साझा करना चाहूंगी। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि मैं भी अपने मम्मी पापा की सबसे बड़ी संतान हूँ, और मेरे दो भाई मुझसे बाद हुए हैं। मैं शायद जिस तरह सारे समाज से निकल के हम लोग बाहर आते हैं, बहुत सारी हर्डल्स को पार करते हैं हम, और उसके बाद हम अपने मम्मी पापा को प्राउड फील कराते हैं। तो मेरी परियों से मुझे हमेशा ये निवेदन है या फिर एक प्यारा आग्रह है कि आप अपने गार्जियंस की हमेशा सुनिए, क्योंकि जब आप अपने गार्जियंस की सुनते हैं तो फिर आप दुनिया में आपको किसी की नहीं सुननी पड़ेगी। दूसरी बात ये कि हमेशा लक्ष्य रखिए कि आपको जो बनना है, सपने देखना सीखिए। सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, और उनको प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी मेहनत दांव पर लगा देना ये सबसे अच्छी बात है।
दूसरी बात, मैं अपने सारे रिस्पेक्टेड अभिभावकों से कहना चाहूंगी, सभी गार्जियन से, कि मौका दीजिए अपनी लड़कियों को। बहुत ही जिम्मेदार है ये, इनकी जिम्मेदारी पूरे समाज की है और विभिन्न क्षेत्रों में इन्होंने अपनी जिम्मेदारियां हमेशा पूरी की हैं। इन पे विश्वास कीजिए। और मैं अपनी जो भी स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स स्टूडेंट्स, उनको एक और चीज मैं बताना चाहूंगी। प्रशासन की तरफ से 112 नंबर, अगर आप कहीं भी हैं, कहीं भी खड़े हैं, कहीं भी स्कूल ट्यूशन के बाद आपको कहीं भी थोड़ा अनयूजुअल फील होता है या अनसेफ फील होता है, तो प्रशासन की तरफ से 112 नंबर की गाड़ी हर जगह लगाई गई है। आप अपने फोन से 112 नंबर डायल करके उन्हें आप अपने पास बुला सकते हैं। पुलिस की आपकी हेल्प में हमेशा तत्पर है हमारे यहाँ। तो और सभी जो फीमेल गार्जियंस हैं, मैं उनको भी कहना चाहूंगी कि कहीं भी हैं आप अनसेफ फील कर रहे हैं या फिर एंटी सोशल एलिमेंट्स आपके इर्द गिर्द आपको कुछ गलत फील करा रहे हैं, तो आप 112 जरूर डायल करें। Now, of course, things are also after that stated by the All India Director DAVPS to New Delhi, Lisa Mekshit ma'am. So it is a very proud for us. Ladies and gentlemen, distinguished guests and friends, I stand before you with a heart full of gratitude as we conclude this auspicious program on women's empowerment. It is an honor and privilege to extend our heartfelt thanks to our esteemed Chief Guest, Madam Julie Kumari, Senior Deputy Collector, Principal Sri ARO Sir, Anil Kumar Sir, ARO DAV Public School Bihar Zone, Ram Kumar Sir, Principal DAV Kanti, Shri Kumar Singh Sir, Principal DAV Sitamarhi, and G.S. Pandey, Principal Khabra. Madam, your insightful words and presence have added immense value to this event. Your commitment to the cause of women's empowerment is truly inspiring, and the speech today resonated with all of us. We would also like to express our appreciation for your dedication and hard work in your field, which you serve as shining example for women everywhere. Your words and presence will continue to motivate us as we strive for a more inclusive and equitable society. I would also like to thank our honorable, dedicated Principal Ma'am, Mrs. Bharti Nayak, for organizing such an event on women empowerment. Thank you for once again to all my distinguished guests. Your presence has made this event truly auspicious. Thank you. Have a nice day. अंतरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्ति आपदः शान्ति रोषधायः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा शान्ति सर्वं शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति 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 ॐ